हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है एक बार फिर से आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। सो क्लास है स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट कर रखा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर आपने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए और अपने चैप्टर के उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें आपको किसी न किसी तरीके से किसी स्ट्रक्चर के अंदर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना होता है। अब उस शेडेड रीजन के एरिया की कैलकुलेशन के लिए ट्राइंगल एरिया, स्क्वायर एरिया, रेक्टेंगल की कंडीशंस, क्वाड्रेंट की कंडीशन, सेक्टर, सेगमेंट, इन सारे पॉइंट्स को यूज करते हुए और इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए वी विल एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन के एरिया के कुछ क्वेश्चंस आप लास्ट क्लास में कर चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं कि और डिफरेंट सिचुएशंस क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके का उनका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है और किस तरीके से उनमें एरियाज को आपस में ऐड या सेपरेट करके रिक्वायर्ड शेडेड रीजन के एरिया को फाइंड आउट करते हैं। So without wasting the time, let's start with the question number 1 of the today class, and the chapter name is areas related to circles. That this chapter we are continuing from the last few classes, that is areas related to the circles. So write the question first. Question आप लोग लिखिए, मैं तब तक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन: In a circular table cover of radius 32 centimeter, in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed. A design is formed by leaving an equilateral triangle. A design is formed by leaving an equilateral triangle in its middle. A design is formed by leaving an equilateral triangle in its middle as shown in the figure. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed by leaving an equilateral triangle in its middle as shown in the figure. Find the area of the design. Find the area of the design. And definitely a figure is given, then O is also given as the center of the circle. Figure given है तो इस figure में O आपका center है. So all of you just observe here that how we have to calculate this area of the design. तो डिजाइन के एरिया के लिए एक सिंपल सा जो कैलकुलेशन अपने माइंड में आता है, that one is that from the area of the circle, calculate the area of the circle and subtract the area of the equilateral triangle. अब कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, वो तो इजी है क्योंकि रेडियस आपको मालूम है, बट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, द कंप्लीट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज द एक्सप्रेशन √3/4a स्क्वायर, बट साइड इज नॉट गिवन. सो आइदर फर्स्ट कैलकुलेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय द ज्योमेट्रिकल प्रोसेस यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आपको पता भी है, फिर आपकी हेल्प कर दूंगा कि कैसे करना है. और आइदर द सेकंड चॉइस दैट वी कैन हैव इज take any one of that side of equilateral triangle, join it from the center, because we know that that circle is divided into the 3 equal arcs. इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने का मतलब क्या हो गया? अगर सर्किल में इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, that means the circle is divided into the 3 equal parts. So with respect to each arc, the angle made at the center is 1/3 of the 360. उस दिन भी बताया था, तो 1/3 360 का कितना होता है? 120. So that means the value of the center angle is 120. The value of the center angle is 120. So let's join the center O with point B and point C. So when we will join the center point O as from point B and point C, this what we can observe, that OB and OC both are the radius of the value 32 centimeter. Question में radius आपको given है, that is the value 32 centimeter. Is it clear? So that the center angle made by this arc BC at the center is 120. So the other option that we can have is calculate the area of the one design by the expression area of sector minus area of triangle. Yes or no? Area of sector minus area of triangle. Area of sector के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360,
एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका थीटा 120 है, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। तो इस प्रोसेस से तो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। प्रीवियस क्लासेस में ऐसा ही क्वेश्चन जब आपने डिजाइन के लिए किया था तो ये सेम प्रोसेस आप लोग फॉलो कर चुके हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आज थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करते हैं। डिफरेंट मेथड मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स के लिए प्रोसेस कैसे सिखाना है उसके लिए बात करता हूं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन फॉलो करना है। सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मालूम है, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। आप इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करके आपको बताना चाहता हूं। एंड दैट कंडीशन इज दैट व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स O। वर्टेक्स O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज द OD। And as far as we will draw the perpendicular from the vertex O, vertex O means center O। जैसे आप सेंटर O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो साइड BC पे, that we know that perpendicular to the chord bisect the chord। Why it's so? Because these two triangles are the congruent। Yes or no? तो आप इनको कॉन्ग्रेंट भी कर सकते हो, BOD और COD को, OB इक्वल टू OC रेडियस, OD कॉमन, राइट एंगल, RHS से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो RHS से कॉन्ग्रेंट होते ही जो दोनों इंडिविजुअल पार्ट है 120 के वो डिवाइड होके कितना हो जाएगा 60। रेडियस वैल्यू कितना है, रेडियस वैल्यू इज 32 सेंटीमीटर। यहां एंगल 60 है, यहां पे राइट एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्टिंग में क्या बताया था, इसको अलग से अगर मार्क करता हूं ODB, यहां पे 90 है, यहां पे 60 है, ये 32 है। तो आपको OD कैलकुलेट करना है या BD कैलकुलेट करना है? OD की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत BD की है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो जितना BD कैलकुलेट होगा उसका डबल करोगे तो BC आ जाएगा। और BD के लिए इस थीटा वैल्यू के लिए ये तो आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। सो P और H में रिलेशन sin 60 से अप्लाई करके और ये क्वेश्चन कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो काम करते हैं, तीनों को ज्वाइन कर देते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन में यही लिखे इन फिगर ज्वाइन, और ये जो O से A लाइन है वो ही आगे परपेंडिकुलर में जाएगा क्योंकि ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है। इज इट क्लियर? तो ये फिगर आपका कंप्लीट है। इस फिगर में लिखिए ज्वाइन OA OB OC ड्रॉ OD परपेंडिकुलर BC। OA OB OC को ज्वाइन करना है और OD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे, BC पे। क्लियर है? इसके बाद में सिंस ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle। ट्राइंगल ABC अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो therefore AB equal to BC equal to CD, सॉरी AB equal to BC equal to AC। अब तीनों साइड्स इक्वल है, तो तीनों साइड्स अगर आपके इक्वल है मतलब ये एक्चुअल में ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं वो सर्कल्स के कॉर्ड हो गए। तो 3 अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डेंस जो आर्क होंगे, आर्क AB, आर्क BC और आर्क AC, ऑल दीज 3 आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब जितना लेंथ आर्क AB का है उतना ही लेंथ आर्क BC का होगा, उतना ही लेंथ आर्क AC का होगा, बिकॉज द कंप्लीट सर्किल इज डिवाइडेड इनटू द 3 इक्वल वैल्यूज। ओके, सो अब अगर ये तीनों इक्वल है तो देयरफॉर एंगल AOB is equal to angle BOC is equal to angle AOC, that is 360 upon 3 and the center angle value is 120। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही आपने सेंटर एंगल वैल्यू का 120 मेजरमेंट लिखा और ड्रॉ OD परपेंडिकुलर BD किया, तो अब आप क्या बताएंगे, इन ट्राइंगल BOD एंड ट्राइंगल COD। लिखने में डायरेक्ट लिखते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल में ये फिक्स प्रॉपर्टी होता है। इन आइसोस्केलस ट्राइंगल द परपेंडिकुलर, in isosceles triangle from the vertex the perpendicular drawn to the opposite side bisect the vertex angle as well as the corresponding side। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होता है तो फिक्स है, वो आइसोस्केलस में एप्लीकेबल होगा। आइसोस्केलस इसलिए क्योंकि रेडियस इक्वल है, OB इक्वल टू OC दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए अपने यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट OD इज इक्वल टू OD दैट इज कॉमन, तो हाइपोटेनियस यूज हो गया, साइड यूज हो गया और परपेंडिकुलर आपने कंस्ट्रक्ट किया है। सो ODB इज इक्वल टू ODC 90 डिग्री। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी, ये देखिए आपको डिफरेंट मेथड बता रहा हूं, एग्जाम में चॉइस आपका है, आप दोनों में से कोई सा भी प्रेफर कीजिए, वो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो BOD COD के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो BOD अगर COD के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल BOD इक्वल टू एंगल COD 120 का हाफ यहीं पे कर दो 60 से,
और दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि CPCT से है, देयरफॉर एंड, और एंड करके एक और क्या, BD इक्वल टू CD। BD और CD भी आपस में इक्वल है, किस प्रॉपर्टी से? CPCT से। तो जितना BD का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसका ट्वाइस करते किसका वैल्यू आ जाएगा? BC का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका इस तरीके से प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो आराम से वीडियो को स्टॉप करके जब मैं रफ करता हूं तो उस टाइम पे आप अपने कॉपी में उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब आगे देखिए सॉल्यूशन कंटिन्यू। तो जैसे एंगल 60 में डिवाइड हुआ तो अब आप बात करेंगे इन ट्राइंगल BDO, इन ट्राइंगल BDO वी हैव, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है वो तो है आपका साइन थीटा, दैट इज द रेशियो ऑफ P अपॉन H BDO में। तो BDO में जो थीटा वैल्यू है वो 120 का हाफ 60 आपने बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर वैल्यू आपका BD है और हाइपोटेनियस वैल्यू आपका 32 है। साइन 60 वैल्यू आपका √3/2 इज इक्वल टू BD अपॉन 32, तो 32 को मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर दिया तो BD इज इक्वल टू 32 √3/2, 2 से 32 16 टाइम, सो BD इज इक्वल टू 16√3। BD अगर 16√3 सेंटीमीटर है तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 2 इंटू BD, क्योंकि ऑलरेडी आपने बता चुके हैं कि बाइसेक्टर है, तो 2 इंटू 16 इंटू 30 दैट इज अगेन 32√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप ये ज्योमेट्रिकल प्रोसेस फॉलो भी करके और इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी साइड फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको इतना नहीं करना, ये सब कुछ नहीं अप्लाई करना, सो आपको सिंपल 120 एंगल बता के एंड देन एरिया ऑफ द वन डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इज इट क्लियर? तो अभी तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड फाइंड आउट हुआ है। अब उसमें वन डिजाइन का एरिया कैलकुलेट हो गया, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई होता और इसमें डायरेक्टली एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। सो व्हाट आई विल कैलकुलेट नाउ, एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसेस होगा? अब यहां पे एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। Yes or no students? Area of the design is equal to area of circle minus area of equilateral triangle ABC. So let's now calculate the area of the circle. The circle formula, बार-बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, पाई r स्क्वायर 32 into 32, area of equilateral triangle √3/4 a square again 32√3 Yes or no? BC का वैल्यू आपके वैसे इक्विलेटरल का साइड कितना आया था? 32√3, सो दैट्स व्हाई √3/4 a square, सो 32√3 into 32√3। कैलकुलेशन में इतना ही है, यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो 22/7 into 32 का स्क्वायर होता है 1024, और यहाँ पे √3/4 32 into 32 1024, √3 into √3 हो गया। तो कॉमन लेके कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल कैलकुलेशन √3 आपको दे नहीं रखा, तो आंसर फ्रैक्शंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो 7 से रिड्यूस होगा और ना यहाँ पे √3 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में √3 वैल्यू गिवन होगा तो ही सब्स्टिट्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना, तो आंसर यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन में आएगा तो रफ के अंदर, रफ वर्क में 1024 का 22 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 0 2, तो ये आएगा 8402, 8 + 4 12 5 22528, तो ये तो प्रोडक्ट हो गया 22528/7। अब यहाँ पे ये जरूर कट हो जाएगा, 4 की टेबल से 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, 256 आ गया। 256 का 3 से 6 3 जा 18, 18 में 5 3 जा 15 + 1 16, 3 2 जा 6 + 1 7, so this is the complete expression is in the centimeter square। तो इसमें एलसीएम लेके क्या करोगे? कोई फायदा नहीं है एलसीएम लेने से। तो ये सिंपल आपका एरिया ऑफ सर्किल आ गया, ये आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका फाइनल आंसर है। और अगर कैलकुलेशन में कैलकुलेट करवाना होगा एग्जाम में तो वो 100% आपको √3 का वैल्यू गिवन होगा, ये कंफर्म है, और नहीं गिवन है तो आपको इसी फॉर्मेट में अपने आंसर्स को, एक्सप्रेशन को रखना है। इज इट क्लियर? कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर एग्जामिनर खुद ही आपको √3 का वैल्यू नहीं दे रहा तो आपको अपने चॉइस से कभी भी पुट नहीं करना है। इस चैप्टर में भी नहीं करना, हाइट एंड डिस्टेंस में भी नहीं करना होता है।
ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन जो कराया था चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें भी कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करने की जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा। राइट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड का मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग लैंग्वेज में लिखे। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज, ये लिखे वैल्यू, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज 17320.5 centimeter square. The area of an equilateral triangle, the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 centimeter square. आगे लिखे, with each vertex of triangle ABC as a center, with each vertex of triangle ABC as a center, with each vertex of triangle ABC as a center, a circle is drawn. With each vertex of triangle ABC as a center, a circle is drawn with radius. A circle is drawn with radius. A circle is drawn with radius half of the length of the, a circle is drawn with radius half of the length of the side of, half of the length of side of equilateral triangle. Half of the length of the side of equilateral triangle as shown in the figure. Find the area of the shaded region. Find the area of the shaded region, और अच्छे से लिख लीजिएगा, use pi as 3.14 and root 3 as 1.73205. Yes, यहां पे पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है और रूट 3 वैल्यू जो क्वेश्चन में यूज करना है दैट इज गिवन एज 1.73205. मेक श्योर रूट 3 एज 1.73205. अब क्वेश्चन समझते हैं, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया गिवन है वो ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक मार्कर से, दैट इज 17320.5. विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC एज सेंटर 3 सर्कल्स आर ड्रॉन, और ये तीनों सर्कल्स जो ड्रॉन किए गए इसमें जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड्स. तो ये देखिए AB साइड है, तो AB साइड जितना भी उसका हाफ किया तो अपर सर्किल का रेडियस आ गया, लोअर सर्किल का भी रेडियस आ गया. फिर BC का जब हाफ किया तो वही कंडीशन, B से सेंटर से सर्कल और C से सेंटर से सर्कल, तो तीनों सर्कल्स के रेडियस सेम है. तो तीनों सर्कल्स के रेडियस जब सेम है सो डेफिनेटली वन सर्कल विल टच अदर द टू सर्कल एक्सटर्नली. जब सेम रेडियस के होता है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज टच करना एक सर्कल दूसरे को तो कर सकता है लेकिन तीसरे के लिए टच करना पॉसिबल नहीं है. वो तभी होगा जब उनका रेडियस सेम होता है. तो तीनों का रेडियस सेम है और आपको इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है जो मैंने रेड मार्कर से मार्क कर रखा है, और पाई और रूट 3 का ये यूज करना है. तो प्रोसेस कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो ऑलरेडी मालूम है. आपको सिंपल एक ही काम करना है, क्या कि आपको जो सर्कल्स के जो 3 सेक्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब ट्राइंगल पोर्शन बनता है तो जो आर्क के अंदर रीजन बनता है दैट इज द सेक्टर. तो आपके पास एक सिंपल सा प्रोसेस है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से सेक्टर फर्स्ट प्लस सेक्टर सेकंड प्लस सेक्टर थर्ड, अगर इन तीनों सेक्टर्स के एरिया को ऐड करके टोटल एरिया में से माइनस करें तो डेफिनेटली आपका शेडेड रीजन कैलकुलेट होगा. अब इन तीनों सेक्टर्स के एरिया को माइनस करने के लिए आपको थीटा चाहिए, तो थीटा तीनों का इंडिविजुअल 60 होगा, क्योंकि आपकी क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल गिवन है. तो ट्राइंगल ABC अगर इक्विलेटरल गिवन है तो वर्टेक्स एंगल आपका 60 होगा. बस प्रॉब्लम एक ही चीज के लिए है, क्या कि क्वेश्चन में जो सर्किल ड्रॉ कर रखा है उनका रेडियस मिसिंग है, और उस रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना होगा. क्लियर? तो सबसे पहले लेट साइड लेट कर लेते हैं. लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, let side of equilateral triangle be x सेंटीमीटर. अगर साइड x है तो therefore
एरिया, क्वेश्चन में तो गिवन है 17320.5, फॉर्मूला वाइज जब कैलकुलेशन करते हैं तो एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। ए अगर कैलकुलेट करना है तो जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करो और जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में लिखिए। तो जैसे ही आप √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आपको एक तो चीज समझ में आ जाएगी क्या कि वैल्यूज में नंबर्स में तो सेम है लेकिन डेसिमल में चेंजेस है। तो डेसिमल में अगर चेंजेस है तो डेसिमल यहां से रिमूव कीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप लोग 50 सब्स्टिट्यूट कीजिए, न्यूमरेटर से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट 173205 से 173205 कट हो जाएगा, 10 है तो 10 से 10 भी कट हो जाएगा। तो a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपका आ गया 40,000। तो a स्क्वायर अगर वैल्यू 40,000 है तो अंडर रूट लगा के प्लस माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि साइड कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो 40,000 का अंडर रूट करेंगे पे a इज इक्वल टू 200 आएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड अगर 200 है तो देयरफॉर रेडियस ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है रेडियस ऑफ सर्किल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड। सो रेडियस ऑफ ईच सर्किल दैट r is equal to radius of each circle r is equal to half of the total length, that is 200/2 100 centimeter. Radius of each circle 200/2 100 centimeter. Is it clear? तो ये वैल्यू आपके पास में रेडियस का आ गया कितना 100। अब इक्विलेटरल है तो थीटा आपको पता ही है कि कितना होता है 60 है, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है ये सेंटर एंगल। तो θ1 θ2 और θ3 करके रिप्रेजेंट होगा, लेकिन तीनों का ही वैल्यू कितना है 60 60 और 60। तो एक बार बताइए, तीनों का रेडियस सेम है, तीनों का सेंटर एंगल सेम है, तो तीनों का रेडियस सेम, तीनों का वर्टेक्स एंगल सेम है, तो तीनों सेक्टर्स का एरिया भी क्या होगा सेम आएगा। तो अपने डायरेक्टली शेडेड रीजन कैलकुलेट करते हैं कैसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, शॉर्ट में लिख दिया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 सेक्टर। 3 सेक्टर्स बन रहे हैं फिगर में, 3 सेक्टर्स में से किसी भी एक सेक्टर के एरिया को 3 से मल्टीप्लाई करके और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से माइनस कर दें। तो ये वैल्यू है 17320.5। एरिया ऑफ सेक्टर होता है क्या फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तीनों का थीटा वैल्यू सेम है, तीनों का रेडियस वैल्यू सेम है, इसलिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 17320.5 माइनस 3 इंटू पाई वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन था 3.14, रेडियस वैल्यू कितना आया 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई थीटा वैल्यू आपका 60 अपॉन में 360। तो पहले आराम से कैलकुलेट करना है एंगल को, 60 से 360 6 टाइम, 3 की टेबल से 6 2 टाइम, 2 की टेबल से 1.57, 314 का 2 से डिवाइड 157 होता है, पॉइंट है तो 1.57। तो 1.57 का जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.57 का 100 से मल्टीप्लाई करें तो 157, फिर 157 का 100 से, तो वैल्यू आ रहा है 17320.5 माइनस 15700, क्योंकि पहले 1.57 का जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल हटेगा, फिर वापस एक और 100 है तो 15700 आएगा। तो डेसिमल के बाद में 0.5 तो सेम है, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 3 में से 7 जाएगा नहीं, बोरो आएगा, 13 माइनस 7 6, क्लियर हो गया, 6 प्लस 7 13 होगा, 30 माइनस 7 6 हो गया, यहाँ पे 6 रहेगा, 6 माइनस 5 1। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इज इट क्लियर? अब सपोज दैट इसी क्वेश्चन में अगर कोई ऐसी सिचुएशंस गिवन है जिसमें ये रेडियस पार्ट तो आपको मालूम है लेकिन वर्टेक्स एंगल अगर नहीं दे रखा हो, 3 अलग अलग सर्कल्स अगर आपके बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक जनरल क्वेश्चन पे बात करता हूं कि अगर कुछ गिवन इंफॉर्मेशन ऐसी है कि अभी तो तीनों सर्कल इक्वल रेडियस के थे, अब ये तीनों सर्कल्स इस तरीके से है,
और आपके पास में आपको ये ही रीजन कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा। तीनों सर्कल्स के रेडियस तो इक्वल है, तीनों सर्कल्स के रेडियस इक्वल है, क्लियर है। लेकिन तीनों सर्कल्स के रेडियस इक्वल है, लेकिन सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे और वर्टेक्स एंगल आपका इक्विलेटरल का नहीं है तो 60 भी नहीं हो सकता। तो ना तो आपको इस सेक्टर का एंगल मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल θ1, ना यहाँ पे θ2 मालूम है, ना यहाँ पे θ3 मालूम है, और आपको अगर ये रीजन कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे? तो रेडियस अगर तीनों का सेम है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 तो सेम आ जाएगा, लेकिन पाई आर स्क्वायर θ1 अपॉन 360 पहले से रीजन का एरिया, प्लस पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ3 अपॉन 360, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 का जो एक्सप्रेशन वो तो कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में आपके पास में θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, तो इंडिविजुअल एंगल की जरूरत नहीं है टोटल एरिया निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 का सम ट्राइंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना होता है? 180। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पेपर में आते हैं जिसमें थीटा गिवन नहीं होता है और थीटा की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि जो फिगर स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 का जो वैल्यू है वो आपका टोटल 180 बन रहा है। तो उसमें इंडिविजुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल सेक्टर नहीं निकाला, आपको तो टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखिए OABC is a quadrant of circle. OABC is a quadrant of circle. OABC नहीं, OACB करके नेम लिखेगा। OACB is a quadrant of circle. OACB is a quadrant of circle of radius 3.5 centimeter. OACB is a quadrant of circle of radius 3.5 centimeter with center O. OACB is a quadrant of circle of radius 3.5 centimeter with center O. फिर आगे लिखिए if OD is equal to, ये फिगर है आपका और इस फिगर में आपको दे रखा है if OD is equal to 2 centimeter, if OD is equal to 2 centimeter, find the area of the तो एरिया ऑफ द में पहला लिखिए, पहला आपसे एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही कैलकुलेट करना है। OACB, फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, सेकंड वही है आपका कौन सा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहला आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, दूसरा आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ये है आपका रीजन जिसको शेडेड किया हुआ है फिगर में। तो ये कंप्लीट रीजन आपका शेडेड है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन है क्या कि जो क्वाड्रेंट दे रखा है इसका रेडियस 3.5 है, तो क्वाड्रेंट का सेंटर O है, तो क्वाड्रेंट का सेंटर O है तो OB 3.5 हो गया और OAB 3.5 हो गया, क्योंकि ये क्वाड्रेंट के रेडियस होते हैं सेंटर से, और ये आपका दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर आपके पास में 3.5 है, पाई नहीं गिवन है, इसका मतलब 22/7 यूज करना है। सो लेट स्टार्ट विद द कैलकुलेशन पार्ट। फर्स्ट सबसे पहले आप रेडियस लिख लीजिए, किसका? रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। ई के ऑब्जेक्ट है तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आर से ही रिप्रेजेंट होगा, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया वैसे इंडिविजुअल पूछा है आपसे, और नहीं भी पूछता तो शेडेड रीजन के लिए क्वाड्रेंट तो निकालना ही पड़ेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यूज में 1/4 पाई 22/7, आर वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, 7 से 3.5 होता है, 7 5 सा 35, तो 0.5 हो गया। 2 की टेबल से 2 टाइम और 2 की टेबल से 11 टाइम कट हो गया। क्लियर है? तो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 सा 25, 25 का 2, 5 3 सा 50 प्लस 2 17, 1.75 अपॉन में 2। तो 11 का पहले 1.75 से मल्टीप्लाई, 11 5 सा 55,
55 का 5, 77, 78, 79, 80, 82, 82 का 8, 11 प्लस 8, 19, 19.25 अपॉन 2। तो 192.5/2 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18, 12, 6, 2 2 जा 4, 10, 5। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? पाई अगर है 22.7 तो कैंसिल होकर हो रहा है, तो पूरा डेसिमल में कन्वर्ट करना ही है। वो तो फ्रैक्शन में तब रखते हैं जब रेडियस नहीं होता है, अदरवाइज डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 9.625। क्लियर है? अब इस 9.625 एरिया में से जब ट्राइंगल OBD के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आएगा। तो शेडेड रीजन से पहले अपने क्या करते हैं, ट्राइंगल का एरिया अलग से निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका नेम क्या है, ODB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ओपे बन रहा है क्वाड्रेंट के अंदर, तो बेस आपका OB हो गया, तो हाफ इंटू 3.5 इंटू 2, क्योंकि OD आपको 2 दे रखा है, हाइट इसका 2 से 2 वैल्यू 1 टाइम कैट हो गया, तो कितना आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फाइनली वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ shaded region. So area of shaded region is equal to the area of quadrant, that is 9.625 minus the area of triangle. So 5 will, because यहाँ पे 0 0 है तो 5 2 सेम रहेगा, 6 minus 5 1, 9 minus 3 6, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी इस तरीके से क्वाड्रेंट और ट्राइंगल के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है, शेडेड रीजन निकालना है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट जब बनता है तो उसमें जो सेंटर है वहां पे एंगल 90 बनेगा, और जो भी एंड पॉइंट है उन एंड पॉइंट से जो सेंटर का डिस्टेंस होता है वही तो आपका रेडियस होता है। तो OA और OB रेडियस है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर इस O को मैं अगर C से ज्वाइन करता हूं सपोज दैट, तो ये OC का लेंथ कितना होगा? सपोज दैट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सर्कमफेरेंस का कोई पॉइंट है वो क्वाड्रेंट के सेंटर से ज्वाइन है, तो OC का वैल्यू कितना है? सो OC इज आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्किल, क्योंकि सर्कमफेरेंस पे अगर कोई भी पॉइंट सेंटर से ज्वाइन होता है, सर्कमफेरेंस पे अगर कोई भी पॉइंट सेंटर से ज्वाइन होता है, सो दैट लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। यस और नो? तो गलती नहीं हो, ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए OC दे देता है, ध्यान रखिएगा। तो OC गिवन, और फिर स्टूडेंट सोचता है कि क्वाड्रेंट का रेडियस तो गिवन ही नहीं है। सो OC इज आल्सो द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, मेक श्योर इट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 लिखिए आप लोग। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं क्वाड्रेंट का। लिखिए क्वेश्चन में, a square OABC, a square OABC, a square OABC is inscribed, a square OABC is inscribed in a quadrant, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ, in a quadrant OPBQ as shown in the figure. A square OABC is inscribed in quadrant OPBQ as shown in the figure. फिर आगे लिखें, if OA is equal to, if OA आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है जिसको मैंने मार्क करके लिखा है, if OA is equal to 20 सेंटीमीटर, if OA is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. Find the area of the shaded region. Use या take pi equal to 3.14. जब को चेंज करना होगा तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्वेश्चन में गिवन होगा, डेफिनेटली गिवन होगा। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज द पाई वैल्यू एज 3.14. दिस वन एंगल इज 90 बिकॉज इट इज गिवन एज अ क्वाड्रेंट एज वेल एज स्क्वायर।
तो अब देखिए, अब अभी इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेंट के अंदर ट्राइंगल था, तो सेट डिवीजन का एरिया कैसे निकाला था? क्वाड्रेंट एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया। तो इस क्वेश्चन में भी सेट डिवीजन कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेंट एरिया माइनस स्क्वायर एरिया। स्क्वायर का तो साइड गिवन है 20, तो इसका एरिया तो 400, बहुत सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि स्क्वायर में साइड गिवन है, लेकिन क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है वो नहीं मालूम है। तो क्वाड्रेंट का रेडियस OP और OQ। अब अगर आपने थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन किया था, तो जस्ट इस डायग्राम से पहले मैंने जो एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन, उसमें आपको क्या एक्सप्लेन किया था? क्या अगर आप किसी वर्टेक्स पॉइंट, मतलब सेंटर पॉइंट को अगर सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से ज्वाइन करते हो, सेंटर पॉइंट को अगर सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। तो OB भी आपका रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट होगा। लेकिन OB जो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट होगा, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर के प्रॉपर्टी से, क्योंकि स्क्वायर में एंगल कितना होता है? 90। तो ये साइड आपका 20 है, तो स्क्वायर का ये भी तो साइड कितना होगा? एरो मार्क कर दिया 20 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का साइड सेम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ट्राइंगल OAB में पाइथागोरस थ्योरम से जो OB कैलकुलेट होगा हाइपोटेन्यूस, दैट हाइपोटेन्यूस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, diagonal of the square, and for this figure, in this figure, that diagonal is the radius of the quadrant. तो फाइनली इस तरीके से आपके पास में रेडियस आएगा। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें लिखते हैं, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सब आपको पता है कि कंडीशन में ये है, फिगर में बनेगा। तो इसमें लिख दो फिर भी एक एक्सप्लेनेशन के लिए, ज्वाइन OB को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आगे लिखिए, सीधा प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का नेम है OAB। राइट एंगल ट्राइंगल OAB में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम OB कैलकुलेट करना है। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OAB आपका 20 है, AB भी आपका 20 है। चलिए स्क्वायर तो करना ही है, तो 400 प्लस 400। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी वैल्यू सेम होती है जिनका आप स्क्वायर करते हो, तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि इनको ऐड करके अगर इसका स्क्वायर रूट लगाओगे तो कैलकुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 400 प्लस 400 800 लिखोगे, फिर 800 के रूट्स के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो इससे बेटर है कि 400 को ट्वाइस ऑफ 400 अगर लिखेंगे तो AB इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 400। ये सब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बताया था जब आप स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। तो अब देखिए 400 का रूट कितना हो गया? 20, और रूट के अंदर 2 आ गया, तो OB वैल्यू कितना आ गया? 20 रूट 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, OB आपने क्यों कैलकुलेट किया है? जो इनडायरेक्टली स्क्वायर का डायगोनल है वो क्वाड्रेंट का रेडियस है, तो क्वाड्रेंट रेडियस वैल्यू आ गया 20 रूट 2 सेंटीमीटर। और अगर क्वाड्रेंट का रेडियस अगर 20 रूट 2 सेंटीमीटर है, तो अब शेडेड रीजन के एरिया के लिए क्या करना होगा? तो लिखिए कॉपी में, 20 रूट 2 आ गया, ध्यान रखिएगा। अब आगे कैलकुलेशन में लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आप कैलकुलेट करते हो, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट के एरिया में से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे। क्वाड्रेंट के लिए 1/4, आई थिंक पाई मैंने दिया है क्वेश्चन में कितना? 1/4 मल्टीप्लाई 3.14। क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में आएगा 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2, क्लियर? माइनस स्क्वायर के एरिया में आ जाएगा कितना? साइड इंटू साइड। फॉर्मूलाज एग्जाम टाइम आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। सो लेट डू द कैलकुलेशन, कंटिन्यू। 3.14 का जब 20 इंटू 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो पॉइंट अगर हटाता हूं तो पहले 1 0 कैंसिल कर दिया, 1 0 कैंसिल कर दिया, 2 की टेबल से 4 2 टाइम हो गया, 2 की टेबल से 2 1 टाइम कट हो गया। तो अगर आप देखें तो 314 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, ये 2 हो गया। डिनोमिनेटर सब कैंसिल है, 314 है, 0 कैंसिल हो गया, 2 2 4, 2 2 से कैंसिल हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2 आ गया, 20 इंटू 20 400। तो 314 का जब 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 628 माइनस 400, सो व्हाट यू विल गेट 228 सेंटीमीटर
square. So that is the required area of the shaded region. So all these are the questions based on the areas related to circle. In next class, again some more important questions we will discuss based on this exercise. Till then, take care. Thank you, students.